So let's start with the EMP reactive forms. In the earlier part 1 and part 2, I have completed template driven form. Now in the part 3, I will be teaching you reactive form. So as I said, in reactive form, you will first of all see that whenever you are using reactive form, the first thing you have to do is in the you will have to import. Okay, so this. I will show you the example. Like this is book component, and in book component, I am using a reactive form. Suppose this is a reactive form I am creating. Form builder is used to create it's a injected service. Angular will inject it. You just mention this form builder. Form builder, you have to import it from Angular form. So this form builder form group is used for reactive forms. Okay, using form builder, you will see I have injected this form builder, and then what I am doing in the constructor, I am calling a method called as this.createForm. In create form, what I am doing, I am using this Angular reactive form service called as form builder, and on form builder, I am calling a group method to create a form structure. Form is nothing but a good group of form controls, right? So it's a group. So you have a group method to create form controls together. Okay, so you will say form builder dot group. It's a function, round bracket function. To that you will pass a JavaScript object, key value pair. And what this JavaScript object will have? Individual control names. Okay, individual control field names. Book ID, book name, book price are the field names I want to create. Okay, understood? Okay, and you create a form structure over here in your code. Okay, but for this to work, for this form builder to work, this group method to work, what you will have to do is inside your TS file, you will have to import reactive forms module. You will have to import reactive forms module. Okay, understood? Without so like for template driven form, you have to import forms module. क्योंकि ng मॉडल फॉर्म ng फॉर्म और ng फॉर्म डायरेक्टिव और ng मॉडल डायरेक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल से आता है. बट अगर आप रिएक्टिव फॉर्म्स यूज कर रहे हो तो फॉर्म बिल्डर सर्विस यूज कर रहे हो. ओके, एंड यू वांट रिएक्टिव फॉर्म टू वर्क, देन यू विल हैव टू import which module? Reactive forms module. If it is a standalone, you will have to import it in the imports array of your component. ठीक है? If it is a standalone component, if it's a standalone component, you will import it here. अगर standalone component नहीं है, जैसे ये मेरा बुक का एग्जाम्पल जो मैंने किया है क्लास में, हमने बाद में किया, इसमें मैंने एंगुलर EX1 का जो आपका एग्जाम्पल था सर्विस वाला बुक का, उसमें ही रिएक्टिव फॉर्म ऐड किया था. ओके, तो वो स्टैंडअलोन कंपोनेंट है, तो उसमें रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट्स में आएगा. अभी जो एग्जांपल, द एग्जांपल व्हिच आई वाज शोइंग यू राइट नाउ, दिस एंगुलर EX3 फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन रिएक्टिव, ये मेरा पुराना मतलब नया वाला ही, बट आई वाज यूजिंग अ मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट. मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट अगर है, जैसे ये मॉड्यूल ng मॉड्यूल यूज किया है, इट्स अ मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट, नॉट अ स्टैंडअलोन कंपोनेंट. हाउ डू यू नो इट्स नॉट अ स्टैंडअलोन कंपोनेंट? यहाँ पे स्टैंडअलोन कीवर्ड नहीं है ना, स्टैंडअलोन कोलन ट्रू नहीं है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू मॉड्यूल. So if it belongs to module, if EMP reactive component belongs to module, and in that if you are using a reactive form, if you are building a reactive form using form builder service, तो आपको reactive forms module कहाँ पे import करना पड़ेगा? Obviously इस component में नहीं, क्योंकि ये standalone नहीं है, तो वो कहाँ पे import करना पड़ेगा? ये component जो है, ये जिस मॉड्यूल को बिलोंग करता है, ये कंपोनेंट कौन से मॉड्यूल को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स ओवर हियर, राइट? इट बिलोंग्स टू दिस मॉड्यूल. डिक्लेरेशंस में सारे कंपोनेंट्स आते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर जितने जितने कंपोनेंट्स है वो आते हैं. तो ये मॉड्यूल रिएक्टिव कंपोनेंट इसमें है. ओके, मॉड्यूल का नाम क्या है? ऐप मॉड्यूल. ऐप मॉड्यूल के डिक्लेरेशन टैग में सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो इस ऐप मॉड्यूल को बिलोंग करते हैं, उसमें ये रिएक्टिव कंपोनेंट आएगा. एंड बिकॉज रिएक्टिव कंपोनेंट इज यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म, आई विल हैव टू
import reactive form module in the imports array of my app module. So imports में आप reactive forms module डालोगे. And because the same module also have EMP template driven component, which is using my ng model and ng form attributes. Okay, and they belong to which module? They belong to forms module. So वो भी आपको यहाँ पे import करना. So forms module is imported for EMP template component, and reactive forms module is imported for EMP reactive component. You have to give the components in the declaration tags and the dependent modules which are required in the imports array of the module to which these components belong. If it is a non-standalone component. If it is a standalone component, then you already know that if it's a standalone component, जैसे book component है और उसमें आप form builder बना रहे हो, reactive form बना रहे हो, तो उसी के imports में आएगा. अगर template driven form बना रहे हो तो forms module आएगा. Okay. Now coming back to your form structure, as I said that in your code you will create it. तो बाकी सारा difference कुछ नहीं है. React आप standalone component बनाओ, module component बनाओ, form builder का form बनाने का तरीका same ही है. ठीक है. So that is not going to change. तो यहाँ पे देखो, अगर आपको फॉर्म कोड में बनाना है, मैंने आपको पहले ही बोला कि रिएक्टिव फॉर्म एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में डिफरेंस क्या है. दैट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में पूरा का पूरा फॉर्म यूआई में बनता है, whereas रिएक्टिव फॉर्म्स में क्या है? रिएक्टिव फॉर्म्स में क्या है? यू क्रिएट द एंटायर स्ट्रक्चर इनसाइड योर टीएस फाइल. So how to create that structure in a TS file? So for that you will have to declare a form group. Okay. So you will declare a form group and you will import it here. Okay. So form group declare करना पड़ेगा. Then you will have to declare a form builder का service. Form builder service allows you to build the form inside your TS file. Okay. Form builder inject कर लिया आपने. फिर मैं form constructor के अंदर ही बना सकती थी, but I have put it in a separate method called as create form, and I am calling that method from my constructor. तो जैसे ये इंस्टेंस इन EMP रिएक्टिव फॉर्म इंस्टेंशिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और क्रिएट फॉर्म मेथड कॉल होगा. उसमें देखो ये फॉर्म बिल्डर सर्विस जो आपने इंजेक्ट करी है ऊपर यहाँ पे इंजेक्ट करवाई है, या यूजिंग दैट टू क्रिएट अ फॉर्म. So what is the method? Group is the method you will use. It's a function, and to that function you will pass a JavaScript का object. What that JavaScript object will denote? It will denote the form structure. जैसे आपने every key colon value pair, key will be your form field name. The name of my field is first name is field name is name. बाद में power है, फिर sidekick है. उसके अंदर आप देखो address which is belonging to that form is in itself another group. So address is a group of street, city, state and zip. So this is another group inside group. Nested form है ये. Okay, in a way it's a nested form. So when you want to do that for address, again you will say this dot fb dot group. Round function आएगा और उसके अंदर आप ये उसके fields डालोगे. क्या fields है? तो address के fields कौन से? Street field है. और street field के लिए क्या आएगा? हर एक field के लिए क्या आएगा? Square bracket आएगी. उसकी first value will be its initial value, comma whatever validators you want to apply. अगर एक ही वैलिडेटर है तो आप ऐसे ही यहाँ पे लिख दोगे. वैलिडेटर्स फिक्स्ड है, उसके लिए वैलिडेटर्स आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, एंगुलर फॉर्म से. तो ये दूसरा डिफरेंस आता है दैट इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आप सामने वैलिडेशन जो लगाते हो वो HTML के वैलिडेशंस आते हैं, whereas in reactive form you don't use HTML validations, you use this validators class. Okay. It provides the set of built-in validators that you can use for reactive form controls. तो आप वो पीछे से जहाँ पे आप फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हो वहाँ पे आपको ये सेट ऑफ built-in validators यूज करने पड़े. ओके. एक ही है, अगर एक ही वैलिडेटर है तो आप ऐसे लिख सकते हो. अगर एक से ज्यादा वैलिडेटर्स है तो जैसे नेम में देखो एक से ज्यादा वैलिडेटर है तो ये इनिशियल वैल्यू है और फिर आप फिर से एक एरे डालोगे. एरे के अंदर मल्टीपल वैलिडेटर्स जैसे रिक्वायर्ड वैलिडेटर है और पैटर्न नाम का वैलिडेटर है. ये सेम पैटर्न है जो हमने टेम्पलेट ड्रिवन में यूज किया था. पैटर्न सेम पैटर्न है कि दिस इज कैरेट सिंबल मींस स्टार्ट एंड डॉलर मींस एंड. दैट वो फील्ड के स्टार्ट से एंड के बीच में यू कैन हैव एनी कैरेक्टर्स बिटवीन स्मॉल a to z डाला है, कैपिटल A to Z भी करो तो यू कैन हैव एनीथिंग बिटवीन कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और 0 to 9.
and the minimum length should be 5, maximum should be 50. So that is what this regex expression means. If at all you are interested, again I am repeating, HTML या JavaScript regex expression आप देखो, how to use regex in JavaScript, you will be able to get a tutorial on it. W3 schools पे भी मिल जाएगा या tutorial point पे मिल जाएगा, ठीक है. So this is how you will create every field. अब किसी field को आपको initialization या validators नहीं देना है तो blank छोड़ो. अगर सिर्फ initialization देना है, जैसे आपको कुछ साइड की को सिर्फ इनिशियलाइजेशन देना है और वैलिडेटर्स नहीं देने, तो आप सिर्फ इनिशियलाइजेशन दे दो, ठीक है. इस तरीके से. So it is up to you. So like this you can create an entire form structure, and the good thing with reactive form is you can create a complex form also. Why I am saying complex? क्योंकि ये फॉर्म ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप है, ऐसे कितने सारे सब ग्रुप्स आ सकते हैं. तो अगर बड़ा फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म है जिसमें कई सारे सेक्शंस है आपके फॉर्म में, ठीक है, तो आप वो इट इज बेटर यू क्रिएट इट यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म. अगर सिंपल फॉर्म है, स्मॉल फॉर्म है विद 2-3 कंट्रोल, यू क्रिएट इट यूजिंग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म. बट इफ इट इज अ, क्योंकि वो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आप देखोगे कि हर एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में पूरा फॉर्म सामने से ही क्रिएट होता है, वहीं पे आप उसके वैलिडेशंस लिखते हो, वहीं पे एरर मैसेजेस सब कुछ वहीं पे आता है, और वहीं पे तो आप अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो आपका टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आप वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने गए तो उसका यूआई काफी क्लटर्ड दिखाई देगा. ओके, वो क्योंकि सब कुछ सामने ही आप कोड कर रहे हो HTML पेज में, टेम्पलेट में, तो इट विल बी क्लटर्ड. ओके, so if it is a complex form you create it in the code using reactive form like this. okay, even simple form भी है, वो भी आप चाहिए तो reactive form से बना सकते हो. okay, I am just telling a scenario where it is ideal to use a reactive form. Reactive form can be used for simple form controls as well as complex forms also. okay, template driven you will usually use only for simple forms, जैसे 5 to 7 कंट्रोल है या मैक्सिमम एट द मैक्स 10 कंट्रोल है, उसके आगे नहीं, तो आप टेम्पलेट ड्रिवन क्रिएट कर लो. लेकिन उससे ज्यादा कंट्रोल्स है तो आप रिएक्टिव फॉर्म यूज करो. ठीक है, जैसे आप इंश्योरेंस एप्लीकेशन है, आप इंश्योरेंस एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके फॉर्म्स तो बहुत बड़े बड़े आते हैं. आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेते हो, फिर उसकी बाकी सारी बहुत लाइक होम का इंश्योरेंस है, हाउस इंश्योरेंस है, तो बाकी सारी हाउस रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, तो काफी सारे सेक्शंस होंगे उसमें. तो वो फॉर्म आप टेम्पलेट ड्रिवन से बनाने गए तो वो HTML पेज काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा. ठीक है, तो वो फॉर्म आप बेटर है आप इससे बनाओ, रिएक्टिव फॉर्म से बनाओ. तो ज्यादातर आप देखोगे एप्लीकेशंस जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं वो सारे सारे रिएक्टिव से बनाए हुए होंगे, और जो सिंपल फॉर्म्स होते हैं वो टेम्पलेट ड्रिवन से बनाए हुए होंगे. सो दैट इज द वे टू डिसाइड कि क्या यूज करना है. ठीक है, now that we have created a form over here, what we are going to do, what is the next step, that you have to map this form on the UI. How will you map this? How are you going to map this? To map it on the UI, you will see that I already told you ना कि यहाँ पे क्या होता है कि you create a form in the TS file, and after that, after creating the form, you will assign that structure to some variable in your TS file. वो भी variable को भी मैंने assign कर दिया है यहाँ पे, इस variable में store कर दिया this.emp form. इसका type क्या होगा? this.emp form का type क्या होगा? form group, है ना? because form builder की group method क्या return करेगी? form builder dot group method will return your form group का instance. तो आप उसे असाइन कर लोगे. अब इसको आपको मैप करना है UI में. Okay, to map it in the HTML template, what you will do, you will take this EMP form, and how will you map it? See this, like this. Okay, so the directive you will use is the form group directive. As the input attribute, you will assign the EMP form which you have created in the TS file. You will map it like this. सिर्फ फॉर्म मैप करके नहीं चलेगा, उसके इंडिविजुअल फील्ड्स जो है, जैसे नेम फील्ड है ना, फिर एड्रेस की स्ट्रीट फील्ड है, वो सारी भी मैप करनी पड़ेगी उसके कंट्रोल्स को. तो नेम फील्ड है अगर, तो वो कैसे मैप करिए आपने, इस फॉर्म के अंदर आपने ये इनपुट कंट्रोल डाल दिया है. ओके, उसमें आपने कौन सा वाला डायरेक्टिव यूज किया, फॉर्म कंट्रोल नेम. So which two directives you will use for mapping your reactive form
inside your form, HTML form, how to map your reactive form to HTML form in the UI using annotation form group. And using form group, you will map the form, and using form control name, you will map the individual field. See this, form control name street, form control name city. एड्रेस देखो, एड्रेस आपने मैप किया है फॉर्म ग्रुप से, या तो फॉर्म ग्रुप नेम बोलो या फॉर्म ग्रुप बोलो, इट इज वन एंड द सेम। स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे तो फॉर्म ग्रुप बोलोगे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना है और डायरेक्टली असाइन करना है तो फॉर्म ग्रुप नेम बोलोगे। ठीक है, तो ग्रुप असाइन करना है तो आप फॉर्म ग्रुप बोलोगे, और इंडिविजुअल कंट्रोल है तो आप फॉर्म कंट्रोल नेम बोलोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपने ये पूरा का पूरा फॉर्म ईएमपी फॉर्म असाइन किया, फिर उसके अंदर का जो नेस्टेड फॉर्म ग्रुप था उसका नाम क्या था, एड्रेस था। एड्रेस आप फॉर्म कंट्रोल नेम को असाइन नहीं करोगे क्योंकि वो ग्रुप है ना, so that again you have to assign it where, to form group name. So in a div, I am creating a div. Inside that div, I want to map that entire address, which is a section of that form. So I will say what, form group name equal to address. And individual controls you can just assign to whatever your input tag या select tag या radio button tag, जो भी आप यूज करोगे उसमें form control name आएगा। ठीक है, जैसे इनपुट के लिए ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट टैग के लिए भी ड्रॉप डाउन विथ ऑप्शंस है, तो फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, स्टेट है। यहाँ पे रेडियो बटन अगर है आपका, रेडियो बटन में देखो सेम फॉर्म कंट्रोल नेम आया तीनों जगह पे, पावर पावर पावर, क्योंकि रेडियो बटन टाइप क्या है, रेडियो है, तो एट अ टाइम तीनों में से आप एक ही वैल्यू सिलेक्ट करोगे, जो भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे वो इसमें आ जाएगी पावर में। ये मैपिंग करने का मतलब क्या है, व्हेन यू मैप दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। यहाँ पे देखो कहीं पे भी किसी भी फॉर्म कंट्रोल नेम में यू आर नॉट यूजिंग एनजी मॉडल, इट इज नॉट यूजिंग टू वे बाइंडिंग, एनजी मॉडल नहीं यूज कर रहा है, बट वंस यू डू मैपिंग इट विल वर्क लाइक टू वे बाइंडिंग ओनली। नाउ दैट you have mapped this form control to this thing, you will see that whatever value you will enter in this text field, it will go over here, and whatever value is initialized into the name field, पहले से पीछे कुछ इनिशियलाइजेशन करके रखा है नम्रता, तो वो भी आपको सामने इस फॉर्म कंट्रोल में दिखाई देगा। So without using ng model, using form control name attribute of reactive forms, you can do that same mapping. Okay, टू वे बाइंडिंग जैसा ही मिलेगा। आप सामने से वैल्यू चेंज करोगे तो नेम में चली जाएगी, नेम में पहले से कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पे इस इनपुट कंट्रोल में दिखाई देगी। You understood how to map. First of all, you have to create the form structure on backside using form builders group method. Form builder is the service you will inject. Group method से पूरा form structure बनाओ। इंडिविजुअल फील्ड है वो उसका इंडिविजुअल फील्ड का नाम लिखोगे, और उसका स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इनिशियल वैल्यू आएगी, फिर वैलिडेटर्स आएंगे इस तरीके से, एक से ज्यादा वैलिडेटर्स है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे। नेस्टेड फॉर्म स्ट्रक्चर है तो उसके लिए फिर से ग्रुप बनाओगे लाइक दिस, यहाँ पे ये खत्म हो गया ग्रुप। फिर इंडिविजुअल कंट्रोल्स है तो फिर से ऐसे के ऐसे दे दिए आपने। ठीक है, और फिर ये मैप करने के लिए आपने क्या किया, ईएमपी फॉर्म का टाइप फॉर्म ग्रुप है, इस ईएमपी फॉर्म को आकर आपने इस फॉर्म ग्रुप एट्रीब्यूट को असाइन किया। क्यों फॉर्म ग्रुप, बिकॉज इसका टाइप क्या है, ये टाइप क्या है आपने डिफाइन किया है, फॉर्म ग्रुप, तो आपने वही असाइन किया है सामने, फॉर्म ग्रुप ईएमपी। और आपको बोलना है कि HTML5 के वैलिडेशन किक इन नहीं होने चाहिए, आप पीछे के साइड पीछे के वैलिडेटर से वैलिडेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे नो वैलिडेट बोल दो, ताकि अगर गलती से किसने यहाँ पे HTML5 का वैलिडेशन लगा भी दिया है, कहीं पे रिक्वायर्ड लिख दिया गलती से, तो आपको चाहिए कि वो HTML का वैलिडेशन किक इन नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ नो वैलिडेट लगा दो। नो वैलिडेट लगाने से क्या होगा, UI साइड से वैलिडेशन, HTML का वैलिडेशन वर्क नहीं करेगा। तो कौन से वैलिडेटर्स वर्क करेंगे, जो फॉर्म कंट्रोल नेम पे आपने नेम मैप किया है तो उसका जो भी वैलिडेशन पीछे आपने लगाया होगा, ये जो वैलिडेशन यहाँ पे लगाया है वो किक इन कर जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। आप जब मैप करते हो फील्ड को फॉर्म कंट्रोल नेम से तो उसकी इनिशियल वैल्यू भी आ जाती है और सारे वैलिडेशन भी उस कंट्रोल के लिए अप्लाई हो जाते हैं, तो आपको सामने से अलग से कोई वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में सामने से HTML वैलिडेशन डालते हो, यहाँ पे आप सामने से नहीं डालते हो, पीछे फील्ड लेवल पे डालते हो, इनिशियल वैल्यू भी वहीं पे डालते हो और वैलिडेशन भी वहीं पे डालते हो, और यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम से जब मैप करते हो तो वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, and then okay, you have seen how to map it, then how to access the value of it, that is also very easy. If you see below
फॉर्म ग्रुप का नाम क्या है आपका, दिस डॉट ईएमपी फॉर्म, पीछे नाम क्या है, ईएमपी फॉर्म है, इसको एक्सेस करना है, बोलो ईएमपी फॉर्म डॉट वैल्यू, पूरा का पूरा फॉर्म का वैल्यू मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको जेसन फॉर्मेट में फॉर्मेट करके बताना है यूआई में। तो ये पाइप सिंबल यूज करो। पाइप नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आज ही कवर किया था, आज के सेशन में, मॉर्निंग में, एंड में। ओके, अंडरस्टूड, स्मॉल टॉपिक है। तो ये पाइप सिंबल क्या यूज करता है, इट हेल्प यू इन फॉर्मेटिंग योर डेटा इन द यूआई। पीछे की वैल्यू, ईएमपी फॉर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगा, होगी नहीं, बस आपको फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे आपने कोई इंटीजर वैल्यू है और आपको करेंसी सिंबल बताना है एंड में, क्योंकि आप प्राइस बता रहे हो, तो आप ये पाइप यूज करके करेंसी करके पाइप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पाइप कौन सा यूज किया है, जेसन पाइप यूज किया है। इट्स द इनबिल्ट एंगुलर पाइप, इट अलाउज यू टू फॉर्मेट दिस वैल्यू इनटू अ जेसन फॉर्मेट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो कोई भी पाइप जब यूज करना है तो आप वर्टिकल ऐसे दोगे लाइन, और फिर वो पाइप का नाम दोगे। प्री डिफाइंड पाइप के नेम्स होते हैं, जैसे जेसन है, लोअर केस है, अपर केस है, करेंसी है, ओके, नंबर है, डेट है। तो अगर आपकी कोई डेट है और आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो आप डेट पाइप यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वीडियो जो है पाइप का, वो उसमें मैंने आपको जस्ट ये उस वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके, आज सेशन में भी मैंने वो टॉपिक एंड में कवर किया है। तो अभी आप जस्ट जेसन पाइप इतना समझो कि इट विल फॉर्मेट इट एंटायर वैल्यू इन द जेसन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड इट विल शो इट इन द यूआई। स्टेटस भी आपने जेसन फॉर्मेट में, क्यों स्टेटस जेसन फॉर्मेट में है, क्योंकि पूरा का पूरा सिर्फ फॉर्म का स्टेटस नहीं है ना। ओके, आप देखो यहाँ यूआई में, लेट्स सी, दिख रहा है फॉर्म स्टेटस, फॉर्म स्टेटस दिखा रहा है, बट वैल्यू देखो पूरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अंदर की वैल्यू। जिप कोड अगर मैं डालूंगी तो वो भी आ जाएगा, यहाँ आ गया नीचे। पावर, पावर सिलेक्ट करूं तो पावर भी आ गया, एक्सरे विजन, साइड किक की वैल्यू चेक करूं तो ट्रू आ गई। ठीक है, तो आप जैसे डालते जाओगे, स्टेट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूं तो वो आ जाएगा। तो ऑल वैल्यूज गेट पॉपुलेटेड। हम्म, और फॉर्म स्टेटस क्या बता रहा है, वैलिड बता रहा है। हम्म, अब आपने वैलिडेशन लगाया था नेम पे, क्या वैलिडेशन लगाया था, रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाया था। अब मैं हटा दूं तो सीधे, जब मैं हटा देती हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे, इनवैलिड स्टेटस बता रहा है फॉर्म का। और ये वैलिडेशन जैसे जैसे एक भी कंट्रोल इनवैलिड हो गया, कंट्रोल इनवैलिड हो गया तो पूरा फॉर्म भी इनवैलिड हो गया। फॉर्म इनवैलिड हो गया तो मैंने क्या किया है, फॉर्म का सबमिट बटन डिसेबल कर दिया, और स्टेटस बता दिया, दैट फॉर्म एरर मैसेज बता दिया, फॉर्म इज इनवैलिड। इतना ही नहीं, आई एम ऑल्सो शोइंग विच where why it is invalid. I am saying form field name is invalid, minimum length is should be so and maximum length should be so and so. ये बताने के लिए, एरर मैसेजेस बताने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, वैलिडेशंस तो आपने पीछे कोड में लगवाए, लेकिन मैसेजेस कहाँ पे बताओगे, मैसेजेस में कहाँ बता रही हूँ, यू विल सी दैट हियर यूआई में। ये देखो, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ एंड में, है ना, ये बटन है, ये अभी इसमें मैंने सबमिट नहीं यूज किया है, एनजी ऑन सबमिट नहीं यूज किया है। व्हाई एनजी ऑन सबमिट इज नॉट यूज, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में एनजी ऑन सबमिट में, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आप, ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जब आप सबमिट करते हो, बटन का टाइप आप सबमिट यूज करते हो और सबमिट पे क्लिक करते हो तो सबमिट इवेंट फायर होता है, ये आउटपुट इवेंट है। रेस्पॉन्स में ऑन ऑन सबमिट बोल के आप ये फॉर्म का रेफरेंस यहाँ से पास करते हो, क्योंकि ये फॉर्म टेम्पलेट में क्रिएट हुआ है, पीछे आपके पास अवेलेबल नहीं है फॉर्म। सो अनलेस एंड until you pass the reference of the form to this on submit method, you will not get access to this form inside your TS file. To get access to that form, you will have to submit it and pass it to that method explicitly in template driven form. इसलिए मैंने वहां पे submit event लगाया है। यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म में ऐसे नहीं है ना, रिएक्टिव फॉर्म के कोड में आपके पास पहले से, कोड में ऑलरेडी दिस डॉट ईएमपी फॉर्म पहले से अवेलेबल है, तो आपको फिर से आपको सबमिट इवेंट लगाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल बटन भी डाल दोगे यहाँ पे।
तो आप देखो मैंने ये नॉर्मल बटन डाला है, नाम मैंने सबमिट रखा है, ओके, मेथड क्लिक पे सबमिट कॉल किए, बट ये इट्स नॉट, बस टाइप इज नॉट सबमिट, टाइप इज बटन, ओके। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एनजी सबमिट इवेंट फायर नहीं होगा, एनजी सबमिट इवेंट सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के लिए ही फायर होता है। यहाँ पे तो क्लिक इवेंट होगा व्हेन यू क्लिक ऑन इट, बिकॉज ये बटन है, ठीक है। बट इसमें देखो इसको भी मैंने डिसेबल करवाया, कब मैं इसको डिसेबल करवाऊंगी, अगर मेरे ये ईएमपी फॉर्म स्टेटस आप प्रिंट करे हो ना, इसका स्टेटस अगर वैलिड नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, इस बटन को डिसेबल कर रही हूँ ताकि मैं सबमिट कॉल ना कर पाऊँ, ठीक है। सेकेंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लिक पे जब मैं माई सबमिट कॉल करती हूँ, मुझे फॉर्म का रेफरेंस पास करने की जरूरत नहीं है माई सबमिट मेथड को। क्यों पास करने की जरूरत नहीं है माई सबमिट मेथड को, क्योंकि रेफरेंस तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है नीचे, ये तो आपके पास ऑलरेडी है ना। तो माई सबमिट मेथड में आप क्या करोगे, माई सबमिट मेथड कॉल हुआ मतलब फॉर्म का डेटा फिल करके हो गया है। So now you know that this.emp form has all the values populated inside it. So my submit और the form submit method पे जो भी फंक्शन आप कॉल करोगे, यहाँ मैंने my submit कॉल किया है, अगर आप बुक का एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें शायद आप क्लिक मेथड पे एड बुक कॉल करोगे। अगेन एड बुक रिएक्टिव फॉर्म्स में कॉल कर रहे हो तो आपको फॉर्म पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म का रेफरेंस आपके पास ऑलरेडी होगा। जैसे मेरे पास ईएमपी फॉर्म का रेफरेंस है, वैसे बुक फॉर्म रहेगा आपके पास। तो बुक फॉर्म का आप आपका आ गया सबमिट में, तो पहले चेक कर लो कि स्टेटस वैलिड है या नहीं। फॉर्म का वैलिड ही होगा क्योंकि आपने यहाँ पे करके ही रखा है कि बटन, अगर बटन तभी अनेबल होगा जब इसका स्टेटस वैलिड होगा। तो सबमिट हुआ है इसका मतलब इसका स्टेटस वैलिड था, नहीं तो ये बटन डिसेबल हो जाता है ना। अंडरस्टूड। बट फिर भी आपको अगर कोड में चेक लगाना है तो यू कैन पुट दिस चेक लाइक दिस, स्टेटस वैलिड है या नहीं। वैलिड है तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज एक्सेस करने हैं ताकि आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना सको। तो आप लेट ईएमपी आईडी कैसे एक्सेस करोगे, दिस डॉट ईएमपी फॉर्म डॉट गेट फील्ड नेम, ईएमपी आईडी है ही नहीं इसमें, मैंने क्रिएट ही नहीं किया है। जो भी फील्ड का नेम है ईएमपी आपके स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो मेरे इसमें नहीं है, नेम है तो मैं नेम एक्सेस करूँ। कैसे एक्सेस करोगे, फॉर्म डॉट गेट में फील्ड का नाम दो डॉट वैल्यू, क्वेश्चन मार्क बिकॉज अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो आप डॉट वैल्यू करके ले लो। ये देखो नेम लिया है, फिर नेस्टेड सेक्शन है, जैसे एड्रेस सेक्शन है, ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप है उसका कंट्रोल है। जैसे ईएमपी फॉर्म के अंदर एड्रेस ग्रुप है, उसके अंदर स्ट्रीट है, तो कैसे करोगे, दिस डॉट ईएमपी फॉर्म डॉट गेट एड्रेस डॉट स्ट्रीट डॉट वैल्यू, तो आपको स्ट्रीट का एड्रेस मिलता है। मैं चेक कर रही हूँ अनडिफाइंड तो नहीं है ना, अनडिफाइंड नहीं है तो वैल्यू प्रिंट करो, नहीं तो बोल दो दैट इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट एंटायर फॉर्म वैल्यू इनटू द इंडिविजुअल फील्ड्स। अब इंडिविजुअल फील्ड्स आपको मिल गए, तो ये मिलने के बाद आप पूरा का पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आपके पास एम्प्लॉय का मॉडल है तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लो, क्रिएट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, कॉपी, extract the values in the field, extract the values of form control in the field in the local variable and create emp object out of it. Okay, once you create an employee object you can call emp service method, emp service you can call emp service, add emp method and pass that employee object whatever you have created, right? दैट्स इट। तो सबमिट में आप जब करोगे तो पीछे सबमिट हो जाएगा एम्प्लॉय फॉर्म सर्विस को। आप देखोगे बुक एप्लीकेशन में मैंने एग्जैक्टली यही किया है। ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उनको असाइनमेंट दी थी कि आप जो बुक एप्लीकेशन का आपने टेम्पलेट ड्रिवन से बनाया था, 3 इनपुट कंट्रोल्स डाले थे ना एनजी मॉडल से, उसको उसको कमेंट कर दो और वहां पे रिएक्टिव फॉर्म बना दो, और जैसे सबमिट करोगे ऐड बुक मेथड में आप फील्ड्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेना, बुक ऑब्जेक्ट बना के सर्विस में ऐड बुक कॉल कर देना। तो उन्होंने after some time I only showed that example, I created that example and I showed them how to do it after giving them some time to do it on their own। तो वो एग्जाम्पल भी किया हुआ क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वो मैं बता दूंगी आपको। तो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू विल एक्सेस द रिएक्टिव फॉर्म इन योर कोड। आप सिर्फ यहाँ से आपको सिर्फ क्या करना है, आप बटन पे मेथड कॉल कर दो, उस मेथड में
आपको पता है ये मेथड कॉल हो गई, मतलब फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो यू आर फ्री टू एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ इट. वंस यू एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यूज, you can create a object out of it and you can send it to a service method. Okay, I am not doing that because that is not our main aim over here. Our main aim is to just see कि reactive form कैसे create होना है, उसकी वैल्यू पीछे कोड में कैसे एक्सेस करनी है, ये सब देखना है. तो दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग. ओके, ये जैसे आप यहाँ पे कोड में एक्सेस कर सकते हो, वैसे आप यूआई में भी एक्सेस कर सकते हो. यूआई में भी मैंने एक्सेस किया, ये देखो नीचे. Is it clear? Okay. So that is how you will access the value. Okay. अब बचा लास्ट पार्ट की, ठीक है, ये भी देख लिया, ये देख लिया कि कोड हमने देख लिया कि कोड में फॉर्म कैसे बनाना है रिएक्टिव. फिर देख लिया कि सामने मैप कैसे करना है, फॉर्म ग्रुप नेम और फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप नेम और फॉर्म कंट्रोल नेम से कैसे मैपिंग करना है वो देख लिया. फिर तीसरा चीज हमने देखा कि अगर इनवैलिड स्टेटस है, फॉर्म का स्टेटस अगर इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, तो बटन को डिसेबल कैसे करोगे. तो बटन अनेबल तभी होगा जब सारे वैलिडेशन, सारे कंट्रोल के वैलिडेशन सही है. जो पीछे लगाए हुए वैलिडेशन से कंट्रोल के वो सारे सही है, तो योर बटन विल गेट अनेबल्ड. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन, माय सबमिट मेथड विल बी कॉल्ड. See this, if I submit this, right now it is invalid, right? If I submit it, if I pass the value, अब ये वैलिड हो गया. ओके, व्हेन आई सबमिट इट नाउ, see this, ये आ गया इनसाइड फॉर्म माय सबमिट मेथड. आपका स्टेटस वैलिड आ गया और आपने एक्सट्रैक्ट कर ली वैल्यू. किसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, यहाँ पे आपने स्ट्रीट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है कोड. ये देखो स्ट्रीट की वैल्यू प्रिंट. नेम भी एक्सट्रैक्ट किया है, आप नेम भी बता सकते हो. तो ईएमपी नेम भी आपको दिख जाएगा. वैलिड स्टेटस है तो सबमिट बटन अनेबल्ड है. सारे वैलिडेशन जो मैंने लगाए वो काम कर रहे. मैंने सबमिटेड, देखो यहाँ पे एक्सेस हो गई वैल्यू, नेम फील्ड एंड स्ट्रीट. ओके, अगर कोई भी वैलिडेशन फेल होता है, जैसे ये इसका वैलिडेशन आपने लगवाया है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये फेल हुआ तो आपको ये एक तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा और ये मैसेजेस दिख जाएंगे, स्टेटस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. तो आप फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाओगे. हम्म हम्म समझ में आ रहा है. अब ये एरर मैसेजेस कैसे बताए, ये वो भी देख लो. यहाँ पे आप देखोगे कि यूआई में जैसे आपने ये बटन डाल दिया एंड आपने बोल दिया कि एमपी फॉर्म स्टेटस इज नॉट वैलिड देन डिसेबल इट, वैसे ही आपने ये मैसेज भी डाला. क्या बोल रहे हो, अगर ईएमपी स्टेटस वैलिड है, अगर ईएमपी का स्टेटस, ईएमपी फॉर्म का स्टेटस वैलिड है, तो आपको ये फॉर्म इज इनवैलिड एरर नहीं बताना है. तो आप इस ड्यू को हाइड कर दोगे. हाउ टू हाइड दैट ड्यू, हिडन एट्रीब्यूट होता है ड्यू का, उसको ये कंडीशन असाइन कर दी, इफ द फॉर्म इज वैलिड देन प्लीज हाइड दैट ड्यू. तो आपको ये मैसेज नहीं दिखाई देगा. अगर फॉर्म इनवैलिड होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हिडन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. ड्यू हिडन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये ड्यू विजिबल हो जाएगा. विजिबल हो जाएगा तो उसमें कोई एरर आपको दिखाई देगी, फॉर्म इज इनवैलिड. वही हो रहा है. because my EMP form status is not valid, it is invalid, you will see that I am able to see this due, form is invalid. जैसे फॉर्म वैलिड हो जाएगा, जैसे उसका स्टेटस वैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ड्यू हाइड हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली आप पूरे फॉर्म के लिए भी कंडीशन डाल सकते हो और इंडिविजुअल फील्ड के लिए भी कंडीशन डाल सकते हो. अगर इनवैलिड है तो आपको ये भी चेक करना है. हर एक फील्ड के लिए कैसे कंडीशन डालोगे, सेम थिंग, बस हिडन पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईएमपी फॉर्म स्टेटस, व्हाट यू विल डे, ईएमपी फॉर्म डॉट गेट नेम डॉट स्टेटस, और उसकी वैलिडिटी चेक करोगे. Okay, so whatever properties and status and everything value is
applicable for form, same is applicable for the individual fields inside it. तो उसका स्टेटस चेक कर लो, अगर वो वैलिड है तो div को हाइड कर दो, अगर वैलिड नहीं है तो एरर बता दो कि फॉर्म फील्ड, कौन सी फॉर्म फील्ड आप चेक कर रहे हो, नेम इज इनवैलिड, और उसका क्या आपने वैलिडेशन लगाया था, पीछे आप देखोगे आपने वैलिडेशन किसका लगवाया था, यहाँ पे ये वाला लगवाया था 5 to 15 कैरेक्टर्स, तो बता दो यहाँ पे दैट मिनिमम लेंथ शुड बी सो एंड मैक्सिमम लेंथ शुड बी सो एंड, तो वो दिख जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन शो इंडिविजुअल मैसेजेस ऑल्सो। आपको ये यहाँ पे नहीं बताना है और फील्ड के तुरंत नीचे बताना है तो आप तुरंत नीचे बता दो। बुक एप्लीकेशन में आप देखोगे मैं तुरंत नीचे ही बता दी हूँ, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन शो इट हियर। तो वो नीचे दिखाई देगा बिकॉज उसके फील्ड रिलेटेड है ना। अब अब देखो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे मैं इसको इनवैलिड बना दूं, नीचे दिखाई दिया, इस फील्ड का यहाँ पे दिखाई दिया और फॉर्म का यहाँ पे दिखाई दिया, है ना। so this makes more sense, right? okay, so just shift it। okay, और ये सबमिट डिसेबल भी हो गया, जैसे मैं इसको वैलिड कर दूंगी हट गया ये, क्योंकि फॉर्म का स्टेटस क्या हो गया, वैलिड हो गया। फॉर्म का स्टेटस वैलिड है मतलब उसके अंदर के हर कंट्रोल का स्टेटस क्या है, वैलिड है। तो ये जो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब emp form डॉट गेट नेम स्टेटस भी वैलिड हो जाएगा, तो ये भी हाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला इसके लिए वैलिडेशन लगवाया है, वैसे आप स्ट्रीट के लिए भी लगा सकते हो। जहां जहां पीछे वैलिडेशन डाला हुआ है आपने, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके लिए डाला है, यहाँ पे स्ट्रीट में डाला है देखो, तो स्ट्रीट के लिए भी आप वैलिडेशन लगवा सकते हो। सी मिनिमम लेंथ 4 है, तो जैसे मैंने 4 से कम कर दिया, फॉर्म इनवैलिड आ गया। बट इसका मैसेज नहीं आ रहा है, स्ट्रीट के कंट्रोल का मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वो डाला नहीं है कोड में। आप उसे डालोगे तभी वो सामने दिखाई देगा। लेट्स ऐड इट, let me copy this over here and let's add it over here। क्या है मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, 4। और कौन सा फॉर्म का गेट का क्या चेक करना है आपको, एड्रेस डॉट स्ट्रीट, राइट। तो लेट्स सी नाउ, आ गया। अब मैं जैसे ही इसको कम करती हूँ, आ गया। फॉर्म फील्ड स्ट्रीट इज इनवैलिड, मिनिमम लेंथ शुड बी 4, ये यहाँ पे दिख गया और ये वाला यहाँ पे दिख गया। ठीक है, जैसे आप सही कर दोगे इसको, एरर चला गया। एंड नाउ यू कैन सबमिट इट इफ यू वांट। ओके, so you understood how to give the validation errors also। तो आपने, तो दैट्स कंप्लीट अवर रिएक्टिव फॉर्म। हमने पूरा देख लिया कि कोड में कैसे क्रिएट करोगे, नेस्टेड फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद सामने यूआई में बाइंड कैसे करोगे, बाइंड करने के लिए पूरा फॉर्म जो है आपका कोड में बनाया हुआ फॉर्म का जो वेरिएबल है फॉर्म ग्रुप का, उसे आप फॉर्म ग्रुप को असाइन करोगे। नेस्टेड फॉर्म ग्रुप है तो वो आप ऐसे फॉर्म ग्रुप नेम, या तो फॉर्म ग्रुप नेम यूज करो, फॉर्म ग्रुप नेम यूज नहीं करना है तो ऐसे ग्रुप बना लो। इट्स वन एंड द सेम, इट्स वन एंड द सेम, इधर यू से फॉर्म ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट और यू से फॉर्म ग्रुप नेम, तो दोनों तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये भी आप या तो फॉर्म कंट्रोल नेम बोलो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म कंट्रोल बोलो, इट्स वन एंड द सेम, विच एवर वे इज सुटेबल टू यू। मैंने फॉर्म नेम यूज किया है। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप से आप ग्रुप मैप करोगे और फॉर्म कंट्रोल नेम से आप कंट्रोल मैप करो। इस तरीके से आपने मैपिंग कर दी। फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी कि अगर जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन मतलब फॉर्म है पूरा, तो फॉर्म का स्टेटस आपको पूरा पूरा कैसे मिलता है, by just saying what emp form dot status, it gives you a status valid invalid। okay, understood। And emp form dot value will give you the entire form value which you are able to see it over here।
जेसन फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट करना है तो आप कंट्रोल जेसन बोलो। जैसे आपको सामने वैल्यू मिलेगी, पीछे भी एक्सेस होगी, लेकिन पीछे आपको तभी एक्सेस करनी है जब फॉर्म की सारी फील्ड्स आप भर दोगे और सबमिट कर दोगे। इसलिए हमने सबमिट बटन डाला हुआ है। फिर ये बटन डाला हुआ है, सबमिट बटन, बटन डाला हुआ है, टाइप सबमिट नहीं है, क्योंकि मैं एनजी सबमिट इवेंट फायर नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे कोई फॉर्म का रेफरेंस पास नहीं करना है पीछे। फॉर्म का रेफरेंस मैंने पास नहीं किया है मेथड में। क्यों? क्योंकि फॉर्म का रेफरेंस आपके पास ऑलरेडी पीछे अवेलेबल है, उसी में वैल्यूज आने वाले। आप जब फील्ड में नेम में वैल्यू डालते हो तो वो नेम के टेक्स्ट फील्ड में डालते हो तो वो इसमें आ जाता है, क्योंकि आपने उसको एक दूसरे के साथ मैप करके रखा है। तो बाय द टाइम यू हैव फिल्ड द फॉर्म, आप जब जिप की वैल्यू यहाँ भरते हो तो वो ऑलरेडी इसमें आ गई है, दिस डॉट टीएमपी फॉर्म के जिप में आ चुकी है, तो मैं फिर से फॉर्म क्यों सबमिट करूँ? So you will see when I just put a simple button over here. सबमिट बोलो या ऐड एम्प्लॉय बोलो, जो बोलना है बोलो, और मैं सिंपल क्लिक इवेंट जो है वो लेती हूँ, माई सबमिट मेथड कॉल करती हूँ। माई सबमिट मेथड कॉल हो गई है, इसका मतलब बंदे ने पूरा फॉर्म, एंड यूजर ने पूरा फॉर्म भर दिया है, और आप उस वैल्यूज के, उस फॉर्म के वैल्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई एम जस्ट चेकिंग दिस डॉट टीएमपी फॉर्म डॉट स्टेटस वैलिड है क्या। अगर वैलिड है तो मैं इंडिविजुअल वैल्यूज ऐसे एक्सेस कर लूंगी, इस तरीके से जैसे आप यूआई में एक्सेस कर रहे थे सेम तरीके से एक्सेस कर लोगे। एक्सेस करके लोकल वेरिएबल में रख दो, उससे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना दो, पूरा का पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना के एम्प्लॉय सर्विस की एड ईएमपी मेथड में पास कर दो पीछे। दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस। अंडरस्टूड? यहाँ पे वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू that this kind of reactive form is easy to unit test also. Why it is easy to unit test? Because आपके पास ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ा है कोड में, तो इसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है आपको, यूआई में नहीं है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूनिट टेस्टिंग इन फॉर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इज नॉट इजी, बिकॉज देयर एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन द यूआई। तो यूनिट टेस्टिंग ऑफ रिएक्टिव फॉर्म्स इज वेरी इजी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और आपको उसको यूनिट टेस्टिंग करना है। आप सामने यूआई आपके पास अवेलेबल भी नहीं है, बट आपके पास अगर ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप उसको यूनिट टेस्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको हमेशा कंपैरिजन में मिलेगा दैट रिएक्टिव फॉर्म्स आर इजी टू यूनिट टेस्ट, template driven forms are not so easy to unit test because they are created on the UI side. Okay, तो ये फॉर्म सबमिट करके देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि अगर वैलिड नहीं है स्टेटस तो आपको फॉर्म बटन डिसेबल करना है, तो आपने ये कंडीशन इसमें लगवा दी। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से सेकेंड टाइम बता रही हूँ कि क्या क्या किया है। और फिर एरर मैसेजेस के लिए हमने क्या किया, हर एक कंट्रोल के नीचे वो देख, I will get access that control and I will check that status. अगर status valid है तो मुझे ये एरर दिखाने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको हाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जैसे आपको वो फ्लैग्स मिलते हैं, प्रिस्टीन, टच, अनटच, और वो सब हम जब करते हैं वो सब नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, स्टेटस वेरिएबल है, स्टेटस वेरिएबल से आप वैलिड इनवैलिड चेक कर लो। अगर वैलिड है तो आप ये एरर मत बताओ, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल कंट्रोल का स्टेटस चेक कर सकते हो वैलिड इनवैलिड के लिए, वैसे पूरे फॉर्म का कंट्रोल स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो बटन डिसेबल करना है, कब डिसेबल करना है बटन को? अगर ईएमपी फॉर्म का स्टेटस वैलिड नहीं है तो बटन को डिसेबल कर दो, ताकि बंदा फॉर्म को सबमिट ना कर पाए। ओके, so this is how you can create an entire form, reactive form, and access its value, okay, on the backend side in the TS file. Create form from here, map it in the UI, and when you submit it in the submit method, form is filled, access the values like this, create a object, employee object out of it, and pass it to a service. That's it. So ये reactive form बन गया एम्प्लॉय के लिए। I want you to create it for the my book application. वहाँ पे book ID, book name, book price है, ये तीन फील्ड से आप वो reactive form से बनाओ। ओके, कोड में पीछे बनाओगे आप फॉर्म बिल्डर से, फॉर्म बिल्डर से फॉर्म ग्रुप बनाओगे जिसमें बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, ये तीन फील्ड्स रखोगे। उसको सामने यूआई पे फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल नेम से, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल नेम से मैप करोगे। फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल नेम से मैप करने के बाद आप फिल करोगे। बटन को तभी अनेबल करना, सबमिट बटन को, या ऐड ईएमपी, ऐड बुक बोलना, ऐड बुक बटन को तभी अनेबल करना जब सारे वैलिडेशन सही हो। और जैसे ऐड बुक मेथड कॉल होगी उसके अंदर फॉर्म के फील्ड्स एक्सेस करना, बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस एक्सेस करना, बुक ऑब्जेक्ट बना देना, और बुक सर्विस तो आपके पास वहां पे है ही, बुक सर्विस की ऐड बुक मेथड कॉल करके
बुक पीछे पास कर दो। ये हमने क्लास में किया है, वो एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं वो एग्जाम्पल आपको बता दूंगी। ठीक है, आपको चाहिए तो आपके साथ में हम कोड में कर भी लेंगे, उसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुबह ऑलरेडी किया है, मैं आपको बस एग्जाम्पल बता दूंगी, आप खुद से कर लो वो, ठीक है, बिकॉज नहीं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। So right now we cover this topic, reactive forms is over. So the next example now I will show you is same reactive form use करके आपका जो बुक का एप्लीकेशन है, एड बुक और लिस्ट बुक वाला, वो एग्जाम्पल में मैंने रिएक्टिव फॉर्म लगाया है सुबह कोड में, क्लास में लगवाया है, वो मैं एग्जाम्पल आपको बता दूंगी, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल शो दैट, ओके।